بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما الواحد القہار علی اللہ مدد فرما حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر 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 توفیق تائید ہمت و یاری 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 شکر للہ والحمد للہ شکر للہ والحمد للہ۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ ہم ہمارے فرامین کا جو ہم نے ڈسکشن شروع کیا تھا فرمان نمبر 45 سپٹمبر 13 1899 کا فرمان، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی نوین صاحب آپ شروع کریں گے پڑھنا؟ جی فرمان مبارک زنزبار 13/9/1899 People say that Pulsirat is there after death. It is not true. Your life itself is the Pulsirat. In this world, the worldly tasks are the Pulsirat. God is not a magician that he will pull you up by extending a rope. Pulsirat must be crossed over in your lifetime. During your lifetime, if you live piously, become righteous, and do virtuous deeds, then it will be as if you have crossed the Pulsirat. But if you live badly, you will not be able to cross the Pulsirat. The world is like the Pulsirat. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی فرمان کو، اسی پیراگراف کو اردو میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پل صراط ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ تمہاری زندگی پل صراط ہے، دنیا میں دنیا کے کام پل صراط ہیں۔ خدا کوئی مداری نہیں ہے کہ رسی ڈال کر تمہیں کھینچے، تمہاری حیاتی میں ہی پل صراط کو پار کرنا چاہیے۔ جب امام یہ بات فرماتے ہیں کہ خدا کوئی مداری نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک سوال جو نارملی اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا خدا رحم رحمان نہیں ہے؟ کیا وہ ہم پر رحم کر کے ہمیں پار نہیں اتارے گا؟ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ خدا کوئی مداری نہیں ہے کہ رسی ڈال کر تمہیں کھینچے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے مولا؟ کیا تو رحمان نہیں ہے؟ Is that مولا is saying that he is not merciful؟ نہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات وہ ہو رہی ہے جو ہم نے قرآن کی ایک آیت چیپٹر 47 سورہ محمد ورس 7 we had discussed that last time that Allah says you help me so I can help you. تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں۔ تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
लेकिन ये हम पे एक आजमाइश डाली गई है कि दुनिया में आकर हम दुनिया की मोहब्बत में खो जाते हैं या ईमान की खोज में हम दीन के रास्ते पर भी चलते हैं। दुनिया इमाम ने नहीं फरमाया कि छोड़ देनी है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए हमें दीन को भी संभालना है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दुनिया और दीन दोनों को संभालते हैं। जो लोग दीन को नहीं संभालते हैं और ये कहते हैं कि इमाम तो रहमी रहमान है, हमारा इमाम बैठा है, उसकी दुआशिश है, मर जाएंगे तो मुखी दुआ कर लेंगे, मादन के छांटे मिल जाएंगे और हमें माफी मिल जाएगी। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें सोचना होगा कि एक शख्स जो सारी जिंदगी मेहनत करता है, दीन के काम को पूरा करता है, अपनी जो जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज को जो है बजा लाता है, in comparison to that there is someone who just lives worldly life, follows the religion at a physical level. उस शख्स का और इस शख्स का क्या बराबर इनाम होगा? खुदा की मदद क्या बराबर होगी? तो ये तो ऐसी बात हुई कि खुदा जो है वो नाइंसाफ है। खुदा जो है वो रहमान है, नाइंसाफ नहीं है। अगर कोई शख्स इल्म के रास्ते में काम करते करते, दुनिया को भी संभालते हुए अगर कुछ कमी बेशी रह जाए तो मौला की रहमत आती है और उसको ऊपर ले जाती है। लेकिन जिस शख्स ने कोई काम ही नहीं किया, जिसने मेहनत ही नहीं की है, उसके लिए इमाम फरमाते हैं कि खुदा कोई मदारी नहीं है कि रस्सी डाल के खींचेगा। तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि we should never take Imam's mercy, Imam's duashes for granted. दूसरी बात जो इमाम इसमें फरमा रहे हैं कि normally people think that after dying there will be reckoning. हिसाब किताब जो है वो मरने के बाद होगा, जबकि ये भी बात सही नहीं है। जो पुल सिरात है, जो हिसाब किताब है, वो इसी दुनिया के अंदर है। सारे आमाल का जो बदला है वो दुनिया के अंदर है। एक मोमिन जब अच्छे काम करता है तो हमें मालूम है कि मोमिन के अच्छे काम का सवाब जो है एक का सवा लाख, राइट, एक का सवा लाख। जब एक का सवा लाख होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि उसके अकाउंट में जब नेकियां बढ़ती चली जाती हैं तो वो ज्यादा, उसका दिल जो है वो नेकी की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? इमाम की रहमत आती है। इमाम की रहमत आती है, उसको सही रास्ते की तरफ गाइड करती है। फिरिश्तों की मदद उसके दिल में आती है, उसके दिल के अंदर अच्छे ख्यालात आते हैं और वो दीन की तरफ हमेशा रागिब रहता है, वो दीन को फॉलो करते रहता है। उसका दिल जो है बगैर मौला के नाम के चैन से नहीं रहता है। अगेन हम कंपेयर करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जो जमाती भाई या बहन है, दुनियादार है, 3 वक्त की दुआ पढ़नी है, जमात खाने भी आना है 2 वक्त, दैट इज इट। दिल के अंदर इमाम की याद होना, अपने गुनाहों की शर्मिंदगी होना, अपने आप को इल्म गिनान में आगे बढ़ाना, अगर ये चाहते उसके दिल के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक हद तक अपने मजहब को पाल रहा है, इसके आगे बढ़ने की उसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। जबकि इमाम का ही हुक्म है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाही का एक फरमान है कि मोमिन की निगाह हमेशा ऊपर चढ़ने की होती है, हमेशा वो आगे पहुंचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मोमिन की बात हो रही है, ना कि दुनियादार की। In a worldly sense, if somebody says, oh, I have one business, now I will have 2 businesses or 3 businesses, very ambitious, लेकिन worldly level पे, that ambition, that desire can also be applied in our religious life. Do we desire, do we become ambitious कि और करना है, और आगे बढ़ना है, आज 1 कदम चढ़े, कल 2 कदम और चढ़ना है, तो क्या ये ख्वाहिश हमारे अंदर है या नहीं है? इन तमाम बातों को लेके ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि दुनिया ही पुल सिरात है। एक मोमिन जो अपने आप को बहुत संभालता है, अपने दिल को पाक और साफ रखता है, इमाम की याद में रखता है, अगर उससे कोई गलत बात हो जाती है, कोई गुनाह का काम हो जाता है, इमीडिएटली उसके दिल के अंदर उसे बोझ महसूस होता है, उस गुनाह का बोझ, दिल भारी हो जाता है, शर्मिंदगी दिल के अंदर महसूस होती है, इबादत में ध्यान नहीं लगेगा,
जिक्र करने का दिल नहीं चाहेगा। क्यों? कि नापाकी ने अब दिल पर काबू किया है, गुनाहों ने दिल पे बोझ डाला है। तो उसके लिए क्या करे वो मोमिन? मोमिन के लिए सबसे अच्छा और आसान रास्ता ये है कि जब भी वो कदम डगमगाए, गुनाह हो जाएं, कहीं भी चाहते हुए कि ना चाहते हुए, फौरन उसकी माफी गिरिया उजारी के साथ मांगे। जब हम माफी मांगते हैं तो हम इस बात को इमाम के सामने पेश करते हैं कि या मौला, we do realize that we are sinful, we are very embarrassed, we are very ashamed, please मौला forgive us। जब हम सिंसियरली तौबा करते हैं, इसका एहसास हमारे दिल पर होता है और फिर हम चाहते हैं कि हम दोबारा ऐसे गुनाह ना करें। हम में से कितने लोग हैं जब दुआ कराने जाते हैं तो कितना मैकेनिकली हम कहते हैं तो वो तकसीरदार बंदो सिरता पाक बनेगा, हाथ मिलाया नहीं मिलाया चले आए। दिल में जब हम दुआ कराने जाए तो हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हमने जो भी गुनाह किए हैं उसकी माफी। जो सामने बच्चा बैठा है, नाइट स्कूल के बच्चे बैठे हैं पार्ट पे या कोई अडल्ट बैठा है, इट डज नॉट मैटर। अमर है सामने बैठने वाले के पास और हम एक गरीब, एक फकीर, गुनहगार की हैसियत से उसके सामने जाते हैं। हाथ जोड़कर दिल से गुनाह की माफी मांगनी चाहिए। तो वो तकसीरदार बंदो सिरता पा गुनेगा, याशा तू बख्शणहार, कि मौला तू ही माफी देने वाला है। ये उस मोमिन के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये समझता है कि मरने के बाद पुल सिरात नहीं है। इमाम फरमाते हैं ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। जो हम आज कर रहे हैं वो आज ही आज हमारा हिसाब किताब हो जाने वाला है। कुरान में खुदा ताला फरमाता है, एक टर्म है सरीउल हिसाब। खुदा जो है वो हिसाब करने में बहुत ही तेज है, बहुत ही फास्ट है। अगर हम नेकी करते हैं तो फौरन से इसका सवाब हमें मिल जाता है, गुनाह करते हैं तो उसका बोझ भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन कौन महसूस कर सकता है? वो मोमिन सालिक जो इस रास्ते पे चाहता है कि वो आगे बढ़े, उसके कदम आगे से आगे बढ़ते जाए। जब उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़े, इस ख्वाहिश के लेते हुए ही उसके अंदर एक सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी, हसासियत पैदा हो जाएगी। और अगर वो गलत काम करेगा तो दिल पे बोझ की तरह वो गुनाह जो है महसूस होगा, कांटों की तरह चुभेगा कि why did I do that? Why did I do that? I wish I had not hurt somebody. I wish I had not thought bad about somebody. Ya Mola, why did I do that? Why was I not conscious? Why was I not mindful? इस तरह से अपने आप को जो है शर्मिंदगी में रख के गिरिया उजारी करना और इमाम से खूब दिल और जान से माफी मांगना कि या मौला प्लीज फॉरगिव माय सिन, मौला तू गफ्फार है, गफूर, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर। हमारे पीरों ने कितने खूबसूरत गिनान लिखे हैं इस बारे में कि हमारा अवगुण सामे तू ना जो, राइट। हमारे पीरों ने हमें समझाया है कि गुनाहों का एहसास रखे। क्यों? कि इस दुनिया के अंदर ही यहीं पे पुल सिरात है, मरने के बाद नहीं, जिंदगी के अंदर पुल सिरात है। दुनिया के काम पुल सिरात है। तो दुनिया में हमारा जो भी टास्क है, इफ यू गो टू वर्क, वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा वर्क है, हमारा बिजनेस है, जो भी है, वॉट एवर वी डू द होल डे, इट हैज टू बी डन विद कंप्लीट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंसेरिटी। हमारे एथिक्स हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए। फिर इमाम फरमाते हैं हयाती में अच्छी तरह चले, अच्छे बने और नेक अमाल किए तो समझो कि पुल सिरात को पार किया। हयाती में अच्छी तरह चले, अच्छी तरह चले मतलब सीधे रास्ते पे चले, सिरातुल मुस्तकीम को फॉलो किया। अच्छे बने मीनिंग कि कोई पैदाइशी अच्छा नहीं बन जाता है, दुनिया का असर सब पे पड़ता है। लेकिन जब माँ बाप की अच्छी ट्रेनिंग होती है, माँ बाप हमें अच्छे इखलाक सिखाते हैं, हमारे टीचर्स हमें अच्छी तालीम देते हैं, उस तालीम का असर जब हम लेते हैं, देन वे बिहेव एथिकली, ऑनेस्टली, अदब से रहते हैं हम। ऑल दैट थिंग हेल्प्स अस टू बी अ गुड पर्सन। तो जो शख्स ये चाहता है कि वो दिन ब दिन अच्छा बने, नेक आमाल करे, तो इमाम फरमाते हैं तो समझो कि पुल सिरात पार किया। समझ लो
यानी कि कमी बेशी भी रह गई, इमाम की रहमत आएगी। कंडीशन प्री रिक्विजिट क्या थी कि आपने कोशिश की कि आप अच्छी तरह चले, अच्छे बने। एवरी डे इज अ न्यू डे, वी डिसाइड टू बिकम बेटर इन आवर लाइव्स, इन आवर वेज। नेक आमाल के, ऑलवेज डू गुड डीड्स। तो समझो यहाँ पे इमाम एक्चुअली इज गिविंग अस बशारत, ग्लैड टाइडिंग्स दे रहे हैं इमाम कि समझो पुल सिरात पार किया। तो अब क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है कि आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर हम कर रहे हैं, हमारे अमाल अच्छे हैं, हमारे दिल के अंदर किसी के लिए कीना, बुग्ज, हसद, झूठ नहीं है, हमारे ख्यालात अच्छे हैं, हमारे ख्यालात एक दूसरे की मदद करने के हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को खामखा तकलीफ देना, किसी को हर्ट करना, कोई भी ऐसे काम नहीं है, और हमारा दिल इमाम की याद में मसरूफ है, जिक्र में, उसके इश्क की चाहना में, तो समझो पुल सिरात पार। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि दोज हु आर हियर, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। सो इमाम की रहमत साथ है हमारे, शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इमाम फरमाते हैं, तुम यहाँ से नवीन साहब आप पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा जी, इंग्लिश में पहले पढ़ लें जी। You must understand properly the facts about your religion. Those who do know, they must learn even more. Those who have not learned, they must learn. If you will read and listen, you will come to know about it. But if you will not read nor listen, how would you know about the merits of the Ismaili Deen? If you read the books of Maulana Rumi and of Shah Shams Tabriz, you will come to know about which path is good. तुम तुम्हारे दीन की बातें अच्छी तरह समझो। Imam is very clearly giving us this hidayat that we need to learn about our religion and do it very well, अच्छी तरह समझो। That means कि जितने भी जमात में members हैं, it is everybody's duty that we need to learn about our tariqa. It is not the duty of RAC teachers. It is not the duty of Mukhi Kamadia. It is not the duty of our parents too. When we are grown, we are adult, it is our duty. When children are young, yes, parents are responsible, RAC teachers may teach something, but eventually it is our own duty individually. तुम तुम्हारे दीन की बातों को अच्छी तरह समझो। We got to understand our तरीका। जो जानते हैं वो और भी ज्यादा सीखें। Now those who know already, जिनको समझ है थोड़ी बहुत, इमाम says that is not enough, learn more. Meaning कि इल्म में जो है रास्ता जो बहुत लंबा है, इल्म का रास्ता जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन खुशी से, आनंद से, इश्क से भरपूर है, डरने की बात नहीं है। इल्म के रास्ते में जो है वो बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशी और बहुत ही ज्यादा जॉयस जर्नी है ये। तो इमाम फरमाते हैं कि इफ यू नो देन यू गॉट टू लर्न मोर। नो वन कैन से आई हैव लर्नड इनफ। इमाम का फरमान है वी गॉट टू कंटिन्यू टू लर्न, वी ऑल नीड टू कंटिन्यू टू लर्न। एंड देन इमाम सेज कि जो सीखे नहीं है वो सीखें। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम सीज इट इन जमात। जब इमाम बैठे हैं, जमात सामने बैठी है, देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल। देयर वर सम हु न्यू एंड इमाम इज टेलिंग देम यू नीड टू लर्न मोर, एंड देन देयर आर दोज हु डिड नॉट, हु हैड नॉट लर्न। इमाम सेज यू गॉट टू लर्न। नाउ वी इन आवर हार्ट वी नो हु वी आर। हैव वी स्टार्टेड टू लर्न सीरियसली विद कमिटमेंट, कि हम अभी भी जो है 1 घंटा लेक्चर सुना, मजा आ गया, काफी है, अल्लाह खैर सल्ला। What is our choice? What are we doing? When we behave in such a way कि चलो 1 घंटा तो अच्छा लगा, अच्छा गुजरा, इबादत है, डेफिनेटली इबादत है, लेकिन अगर हम इसी एटीट्यूड को रखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जो हाल होगा वो ये होगा कि हमारे जो टेस्ट हैं, कौन से टेस्ट, कि जो हमारी बुरी आदतें हैं या जो हमसे गुनाह
हो जाते हैं, उनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। क्योंकि हमने लेक्चर को सुना, अच्छा लगा, काफी है, इसके आगे कुछ नहीं किया, फिर लेक्चर को सुना। कितनी दफा हम रेपिटेशन में बहुत ज्यादा सेम चीजें सुनते हैं। सुनना अच्छी बात है, लेकिन सुनने के बाद उस पर गौर किया, ख्याल किया। इमाम का फरमान है 2 घंटा ख्याल करना। क्या कुछ नोट्स लिखे ताकि अपने आप को याद दिलाएं कि मैंने जो ये सुना था और सोचा था उस वक्त कि अपने आप पे अमल करेंगे? डिड आई डू दैट? If I did not do it, meaning that I'm not willing to move forward. I hope you are listening to me carefully कि अगर जब हम इल्म गिनान को सुनकर उस पर ख्याल नहीं करते हैं, हम लिखते नहीं हैं कि क्या बीमारी हमारे अंदर है, क्या गुनाह करने की हमारी आदत है, और फिर अपने आप को बराबर तपास किया नेक्स्ट डे कि डिड आई डू द सेम थिंग अगेन, तो क्या होता है कि हमारा एक पैटर्न होता है, वी स्टे गोइंग राउंड एंड राउंड इन दैट पैटर्न। इल्म की जो ताकत है, इल्म का जो माजिजा है, वो ये है, इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स। उस पैटर्न्स को हमको ब्रेक करके बाहर निकलना है, तभी हमारा फायदा होगा ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टू स्टे इन द सेम सर्कल ऑफ गुनाह, और हमको लगेगा नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो एवरीडे लेक्चर सुनते हैं, मौला का नाम लेते हैं। डेफिनेटली लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे जो शायद सुनते नहीं हैं। तो यस, हम एक कदम आगे आ गए हैं। इसके बाद क्या? क्योंकि इमाम का फरमाना ये है कि जो सीखें वो और सीखें। तो और सीखने के लिए क्या करेंगे हम? क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए? फिर इमाम फरमाते हैं, पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो आज इफ वी आर लिसनिंग, डेफिनेटली इमाम के फरमान के मुताबिक वी आर लिसनिंग, देन डिड वी गो बैक एंड रीड? नाचीज ने फरमान हम पढ़ रहे हैं, कुरान के दाखले दिए, गिनान का दाखला दिया, तो हम में से कितने लोग हैं कि जो जाके कुरान की आयत को ढूंढेंगे, उसको पढ़ेंगे कि भाई नाचीज ने जो बात की वो सही भी है कि नहीं है, कुरान में लिखी भी है कि नहीं है। हमको पढ़ना होगा, जब ही वो हमारे दिमाग पे असर करेगी और दिमाग में रहेगी। अदरवाइज बहुत मुमकिन है कि हमने एक कान से सुना और वो कुछ टाइम बाद निकल गया जहन में से, क्योंकि हमने इसको दोबारा रिव्यू नहीं किया। तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ये है कि हम ये जिम्मेदारी लें, इमाम के फरमान की फरमान बरदारी करें कि हम जो सीखें हैं उसको और सीखें। मीनिंग वी नीड टू रिव्यू, वी नीड टू रिफ्लेक्ट। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, तो क्या पता चलेगा कि इस्माइली दीन क्या है? यानी कि इमाम के सामने जो जमात बैठी हुई है, इमाम इज सेइंग कि उनको पता ही नहीं इस्माइली दीन क्या है। आज हम जितने क्लासेस में आते हैं, कभी कभी बहुत अजीब व गरीब सवालात होते हैं, और ऐसा लगता है कि क्या हमें मालूम भी है कि हमारा दीन क्या है। तो बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इल्म से आगाह करें। ये भी एक ड्यूटी है हमारी कि जब हम क्लासेस में, जनरल क्लासेस में बहुत सारे बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को सिखाएं, सुनाएं। ये भी एक किस्म का रिव्यू है। दोस्तों को लाएं ताकि वो भी इल्म से फ़ायदा उठाएं, और इल्म की जो हमारे मज़हब की जो हकीकी समझ है उसको वो हासिल करें। तो इमाम के फरमान के मुताबिक अगर हम नहीं पढ़ते हैं, अगर हम नहीं सुनते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस्माइली दीन क्या है। We got to listen to lectures and then we need to review, we need to read, we need to reflect in order to learn what is the meaning of, true meaning of this hakiki tariqa, this batini tariqa. Then Mola is saying, किताब मौलाना रूम और किताब शाह शम्स तबरेज की पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है। Now these are two poets जिनकी इमाम रेफर कर रहे हैं इमाम को। मौलाना रूम के बारे में इमाम ने कहीं और फरमाया है कि जो हमसे रिलेटेड है, सेलेक्टेड है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि रूमी ने बहुत सारी दूसरी भी बातें की हैं। तो जो हमसे रिलेटेड नहीं है, हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, उसको नहीं पढ़ना है। रिमेंबर, आवर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल।
when we invest our time, हमें ये देख के करना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारा फायदा उससे क्या होगा. दुनिया में बहुत सारे इल्म है, बहुत सारे इल्म है. हम सबको अगर पढ़ने बैठेंगे तो वहां कहाँ कैसे पहुंचेंगे जहां पहुंचना है. हमारी उम्रें हो गई. We are not young kids who has the time and opportunity to read and review everything to become scholar and get all these knowledges. We have to be very selective. हमारे ईमान के बारे में क्या बताया जा रहा है. मौलाना रूम ने हमको हमारे मजहब के बारे में, हमारे तरीके के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ईमान की तारीफ के बारे में क्या फरमाया है, कहाँ बातिन की समझ दी है, उन बातों को हमको पढ़ना है, ना कि सारी सारी किताबें पढ़नी है. तो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी सेलेक्टिव जब हम पढ़ते हैं. फिर इमाम जो है वो मौलाना रूम की एक मिसाल देते हैं. तो नवीन साहब आप पहले इंग्लिश में पढ़ें, फिर हम आगे पढ़ेंगे. Maulana Rumi first thought about himself, "Earlier I was a stone, later on I was created a tree, and from that I have evolved into a human being. From a human being what shall I become?" Hence, he used to think about it. You also must think about what you will become from a human being. Perform such deeds and have such thoughts that you attain the status higher than that of the human being. Be it Maulana Murtaza Ali's progeny or Hazrat Umar's progeny, only he whose deeds are virtuous is a good person. मौलाना रूम ने पहले अपने बारे में सोचा कि पहले मैं पत्थर था, फिर दरख्त बना और उसमें से इंसान बना हूं. इंसान में से क्या बनूंगा, उसका वो ख्याल करता था. तुम भी ऐसा ख्याल करो कि तुम इंसान में से क्या बनोगे, इंसान से ज्यादा बड़े मर्तबे पर पहुंचो. ऐसे काम और ऐसे ख्याल करो. तो इमाम इज टॉकिंग अबाउट मौलाना रूम. मौलाना रूम सेज कि ही वाज फर्स्ट स्टोन. तो अब ये फरमान पढ़ के जमात के अंदर जो गलत फहमी हो जाती है वो ये कि मौलाना रूमी इज टॉकिंग अबाउट रीइंकार्नेशन, जबकि ऐसा नहीं है. These are stages of our soul, and we have talked about it in different classes. In English, we would say first we have mineral soul, vegetative soul, animal soul, and then comes the human soul. So when Rumi says that पहले पत्थर था, meaning that mineral soul की मिसाल पे थे. माँ के पेट में एक लोथड़े की मानिंद मिनरल सोल की मानिंद थे. एंड देन जब ग्रोथ होती है वो जो है वेजिटेटिव सोल की निशानी है. एंड इसके बाद इंस्टिंक्ट्स आती है. बच्चा गुस्सा करता है, नाराज हो जाता है या जिद करता है. ये तमाम बातें इंस्टिंक्ट्स पे बेस करती है, जानवर की हिस्से हैं, ये जानवर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और फिर कहीं जाके 10 साल के बाद जब इंसान की सोल उस पर पूरी होती है, तब जो है उसके अंदर सब्र, शुक्र, अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरह से अपनी रैशनल सोल को इस्तेमाल करके इंसान की तरह बिहेव करना है. तो उर्दू में जब हम कहते हैं तो नबातात, जमादात, हैवानात, इंसानात, ये 4 मकाम हैं. तो जब रूमी कहता है मैं पत्थर की तरह था, ही इज टॉकिंग अबाउट मिनरल सोल. सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मिनरल सोल इन आवर बॉडी? हमारे दांत, हमारी हड्डियां जो है वो मिसाल हैं मिनरल सोल की. फिर जो है कहता है कि दरख्त बना. तो अगर हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे जो है वो दे ग्रो, राइट. हमारे अंदर इस वक्त हमारे बाल ग्रो होते हैं या हमारे अंदर सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं. देयर इज अ ग्रोथ इन अ वे. तो जो है वो वेजिटेटिव सोल की बात हो रही है. एंड आफ्टर दैट कम्स जानवर की सोल या जानवर की कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी वेरी वेल नो. एक इंसान अगर जब गुस्सा करता है तो वो जो गुस्सा है वो एक जानवर की खसलत की मानिंद है. इंसान जो है वो अपने गुस्से को काबू कर सकता है. इसीलिए एक टर्म जो हम समझते हैं और सुनते हैं, जानवर नुमा इंसान.
इंसान तो है लेकिन उसकी हरकतें हैं वो जानवर जैसी है। क्या मतलब? कोई अदब नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, हर वक्त गुस्सा करना है, लड़ना झगड़ना है, कोई सब्र नहीं है। ये तमाम हरकतें एक इंसान की नहीं है, जानवर की हैं। तो वो इंसान जैसा तो लगता है, इंसान का रूप तो है, लेकिन जो आदत है, जो अहवाल हैं, वो जानवर जैसे हैं। उस शख्स को हम इंसान नहीं कहेंगे। तो इंसान बना, इसका मतलब क्या हुआ? जब रूमी कहता है कि मैं इंसान बना, व्हाट डज दैट मीन? रैशनल सोल से अपने आप को अकल के हवाले किया। रैशनल सोल कब आती है? जब हमारे पास अकल हो। जब अकल से अपने आप को कंट्रोल किया, अकल से बिहेव किया, इसका मतलब इंसान बने हम। और इमाम ने इंसान की बहुत तारीफ की है, क्योंकि इंसान बनने के बाद ही कोई इंसान फिरिश्ता बन सकता है। इमाम ने दूसरे फरमान में कहीं फरमाया कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जानवर का है, दूसरा फिरिश्ते का है। तो सामने कौन है? इंसान है, कोई इंसान है जो फरिश्ते की सड़क पकड़ेगा, और दूसरा जो जानवर नुमा इंसान है, वो तो है ही जानवर की सड़क पे, क्योंकि वो लगता इंसान है, बट इज ऑलरेडी ऑन अ वे टू बिकम एन एनिमल बिकॉज ही इज बिहेविंग और शी इज बिहेविंग लाइक एन एनिमल। तो इंसान के हाथ में ये इख्तियार है कि वो जानवर की तरह रहे या इंसान से भी आगे बढ़े। रूमी ये कहता था। रूमी को जब उसका अपना उस्ताद मिला, शम्स तबरेज से उसकी जब मुलाकात हुई, उसकी टीचिंग्स हुई बातिन के हवाले से, हकीकत के हवाले से। रूमी बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर था, टीचर था, वाज अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी लेवल पे, बट ही डिड नॉट नो व्हाट बातिन वाज। As soon as he learned about batin, he elevated his ranks very fast. Can you imagine कि हम जो है इस्माइली हकीकी तरीके में हैं, इमाम जो है हमें हकीकत की तालीम देते हैं, हमें तावील की तरफ रागिब करते हैं, हमें ध्यान दिलाते हैं कि तावील, बातिन, एसेंस, मग्स को चखो। ये तमाम बातें इमाम इसलिए करते हैं कि ये हम पर बहुत बड़ी इमाम की रहमत है कि वी आर इस्माइलीज। रूमी जो है वो इस्माइली नहीं था, लेकिन इस्माइली से मुलाकात हुई तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो हम तो हैं ही इस्माइली, हम तो पैदा ही इस्माइली मजहब में हुए। इमाम फरमाते हैं कि हमने तुमको बहुत ही मोहब्बत व शफकत से इस्माइली दीन में जन्म दिया है। तो हमारी रूहें ऐसी थोड़ी थी कि हम इस्माइली मजहब में पैदा हो गए। इमाम की शफकत, इमाम की मोहब्बत हमारे साथ थी। उसी मोहब्बत का, उसी शफकत का हमें मान रखना चाहिए और इमाम को हम पर फख्र होना चाहिए। हमारे काम ऐसे हो कि इमाम से राजी हो कि हम इंसान बने। क्यों इंसान बनना है? क्योंकि इंसान के आगे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने के बाद क्या होता है कि जैसे इंसान की जब रूह आती है, रैशनल सोल, और वो मोमिन आगे से आगे बढ़ता है, तो रूहुल कुद्दूस, जिसे हम कहते हैं होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दूस जिसका मकान जबीन पर है, रूहुल कुद्दूस, होली स्पिरिट, वो मोमिन सालिक उसके साथ एक हो जाता है। यानी कि क्या बात हुई? जैसे हमारे पीरों ने समझाया हमें कि एक गिनान का बहुत खूबसूरत पार्ट है जिसमें पीर यही फरमाते हैं कि आप जो है वो इमाम के साथ फना हो जाए। हमारी जबीन में इमाम का दीदार, जब जिक्र नाभि से चढ़ के एक हो जाता है, ऊपर आके एक हो जाता है। नाभि से चढ़ के क्या मतलब? कि हम अपने दर्जात को बुलंद करते जाते हैं, और जब हमारा ध्यान एक हो जाता है, सूरती आकाशे जायरे, जब एक हो जाता है, यानी कि रूहुल कुद्दूस के साथ एक हो जाता है, तभी हम फना फिल इमाम के दर्जे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आला रूह है। तो इंसान की रूह में ये ताकत है कि जिस रूह से वो जुदा होकर आई है, उस रूह के साथ वो एक हो सकती है। हम तमाम नफ्से वाहिदा, सिंगल सोल से आए हैं। कहाँ है इसका जिक्र? सूरह निसा आयत नंबर 1, चैप्टर 4 वर्स 1, जिसमें यह जिक्र किया गया कि हम तमाम सिंगल सोल से पैदा हुए हैं।
अगर हम जो कि इमाम के नूर का कतरा है, अगर हम जो शराइत हैं, इबादत, बंदगी, जिक्र, फिक्र, इल्म, गिनान, गिरिया उजारी, आमाल की पाकीज़गी, जब हम इन तमाम शराइत पर अमल करते हैं तो क्या होता है, वो नूर का कतरा ऐसा ताकतवर हो के वो इमाम में फना हो जाता है, इमाम के साथ एक हो जाता है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि इमाम की रहमत हमेशा हमारे साथ है। वो हमारे इंतजार में है कि हम कब अपने आप को उस मकाम तक लेके जाएं। किस मकाम तक? जैसे रूमी कहता है, इंसान से ज्यादा बड़े मर्तबे पर पहुंचूंगा। इमाम फरमाते हैं, ऐसे काम और ऐसे ख्याल करो, ऐसे काम और ऐसे ख्याल करो। दो चीजें फरमा रहे हैं इमाम। Deeds, these kind of deeds, meaning we got to study true knowledge. We need to write down, we need to listen. And then Imam says, reflect upon it too. Just don't be listening, studying, but reflect upon it too. क्योंकि ये इल्मी नुकात हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं, अपने आप के क्लोज लेके जाते हैं कि मेरी क्या हालत है, क्योंकि इसी इल्म से समझ आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और फिर इमाम के हुक्म के मुताबिक हर रात को हमें अपनी नफ्स को टटोलना है कि मैंने आज का दिन कैसा गुजारा, कितने दर्जात में अपने आप को आगे बढ़ाया या कायम रखा, नीचे तो नहीं गिर गए कहीं, गुनाह तो नहीं कर दिए कहीं। तो इन तमाम बातों को जब हम गौर करते हैं तो तभी हम अपने आप को ऐसा करते हैं कि जैसे आईने के सामने खड़े हैं, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां सब देखी हमने और हमें अपने आप को और अच्छा बनाना है। जब ऐसे काम करेंगे, ऐसे ख्याल करेंगे तो यकीनी आगे बढ़ेंगे, कोई शक नहीं है इसके अंदर। फिर इमाम फरमाते हैं, मुर्तजा अली की औलाद हो या उमर की औलाद, जिसके काम अच्छे हैं वो ही अच्छा है ना। उमर कौन था? उमर जो थे वो खलीफा थे जिन्होंने मौला अली के को हक मौला अली का नहीं दिया था। अबू बकर के बाद उमर जब खलीफा बने तो पॉलिटिकल रीजंस, पावर के रीजंस के लिए दे ऑल बिकेम खलीफा। जो हक इमाम का था वो इमाम को नहीं दिया। तो इमाम जो है वो दो अपोजिट शख्सियात की यहाँ पे बात करें, एक तो हमारे इमाम मौला मुर्तजा अली और उमर की औलाद। जो लोग अच्छे काम करेंगे वो ही अच्छा है, वो ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक मिसाल दें कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंकल थे जिनका नाम था अबू लहब। जब पैगंबर को ये पैगाम मिला, ये कहा गया, खुदा ने ये कहा कि आप जो है, जो आपको हुक्म मिला है आप पैगंबर हैं और दावत का काम करेंगे, दुनिया को इल्म देंगे, तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत करते हैं और तमाम पूरे खानदान को बुलाते हैं और दस्तरखान पे एक प्याला दूध का रखते हैं और एक बकरे की टांग, और ये दो चीजें उनके पास होती, एक प्याला दूध का और एक बकरे की टांग। और तमाम फैमिली मेंबर्स में जितने मर्द हजरात थे सबको इनवाइट करते हैं घर पर कि उनको बताने के लिए कि वो खुदा का पैगंबर बने हैं। 40 लोग उस दावत में आते हैं, दावत उशीरा के नाम से वो दावत मशहूर है। 40 हट्टे कट्टे बड़े स्ट्रॉन्ग पीपल, राइट, दे ऑल आर देयर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे खुदा की तरफ से ये पैगाम मिला है कि मैं खुदा का पैगंबर बना, और मेरा हमेशा खुदा के पैगंबर का कोई वसी या कोई अहसास होता है। कौन आप में से मेरा मददगार, मेरा वसी बनेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके तमाम से पूछते हैं। आखिर में मौला अली रह जाते हैं, and he is very young. मौला अली says, O Prophet, I will help you. I will help you in your mission. And Paigambar says, definitely you are my wasi, you are my helper. यहाँ पे जो स्टोरी सुनाने का मकसद है कि जैसे ही जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो अबू लहब जो पैगंबर के दुश्मन हो जाते हैं, उनके अंकल हैं, फैमिली के मेंबर हैं, अंकल हैं, और वो कहते हैं कि तुमने देखा कि मोहम्मद कैसा जादूगर है,
एक प्याला दूध का और एक बकरे की टांग, सिर्फ एक प्याला दूध का और एक बकरे की टांग, और तुम तमाम ने पेट भर के खाया। ये जादू नहीं तो क्या है? ये कोई पैगंबर नहीं है, ये तो जादूगर है। और इसके बाद अबू लहब जो है उनकी बहुत दुश्मनी करते हैं, उनको बहुत तकलीफ देते हैं, उनको मारने के लिए स्कीम करते हैं, फैमिली मेंबर है। तो ये जो स्टोरी सुनाने का मकसद है वो ये कि जब इमाम फरमाते हैं मुर्तजा अली की औलाद हो या उमर की औलाद, जिसके काम अच्छे हैं वही अच्छा है, वही अच्छा है। तो हर इंडिविजुअल पर ये ड्यूटी है कि किसका पास्ट कैसा है, किसके आसपास कैसे लोग हैं, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। हम इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारे आमाल कैसे हैं, हमारे ख्याल कैसे हैं। अगर हमारे आमाल अच्छे हैं, हमारे ख्याल अच्छे हैं, हर दिन हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमाम ने हमें ये बुशारत दी है। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम अच्छी तरह चले, अच्छे बने, नेक आमाल किए, तो समझो कि पुल सिरात पार किया। इमाम ने ये बता दिया है हमें। तो अब हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। नेक, फिर इमाम फरमाते हैं तुम इल्म पढ़ते हो, सुनते हो, इसमें ख्याल करना चाहिए। अगेन इमाम इज एम्फसाइजिंग कि तुमने इल्म को पढ़ा, इल्म जो है वो फरमान में भी है, कुरान में भी है, गिनान में भी है। जब हम इल्म को पढ़ते हैं उसमें ख्याल कितना किया। अब पढ़ने के लिए लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक रीडिंग कर ली, क्या दिमाग उस रीडिंग के अंदर था? अगर था तो क्वेश्चंस आने चाहिए कि इमाम का यहाँ क्या कहने का मकसद है, इसका मतलब क्या हुआ। अगर कोई सवाल नहीं आता है, इसका मतलब हमने दिमाग में इसको उतारा नहीं है। तो क्या करें उसके लिए? फरमान को लिखें। कुछ लोग फरमान को मेमोराइज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से लोग कुरान को हिफ्स कर लेते हैं, कुरान हाफिज होते हैं लोग, मेमोराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल होता है कि अच्छी बात है याद करना फरमान को, कुरान को, लेकिन क्या ये इनफ है कि हम इसका रट्टा लगा लें? क्या हमने इसके मायने, इसके मग्स, इसके अंदर जो एसेंस है उसको हमने समझा है कि नहीं? तो अगेन हमारे जो भी जिस तरह से हमारी लर्निंग का तरीका है, हमें अपने आप को क्रिटिकली देखना होगा कि हमने लिमिट तो नहीं कर लिया है अपने आप को, और अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नादानी की गुंजाइश नहीं है हमसे। इमाम कहते हैं कि हमारा तरीका जो है वो अक्ल पे रचा हुआ है। हमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके अपने आप को ही पहले सवाल करना पड़ेगा कि क्या जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, क्या वो इनफ है? क्या मैंने अपने दिमाग को सही तौर पर इस्तेमाल किया है, जिस तरह से हम दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं? वी कैन बिकम वेरी क्लेवर इन आवर वर्ल्डली डीलिंग्स, कि हमें दुनिया में नुकसान ना हो, दुनिया में फायदा हो। क्या हमने इसी तरह से अपनी अकल को अपनी दीन के लिए चलाया है, मेहनत ली है? ली है तो मुबारकबाद। मुझ जैसे गरीब जो है उनको शायद ज्यादा समझने की, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इमाम फरमाते हैं तुम इल्म पढ़ते हो, सुनते हो, इसमें ख्याल करना चाहिए। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ख्याल करे बगैर आगे तरक्की नहीं है, क्योंकि ख्याल करेंगे तब सवाल आएंगे, सवाल आएंगे तो जवाब मिलेंगे, जवाब मिलेंगे तो अमल में बेहतरी आएगी, अमल में बेहतरी आएगी, इबादत में ध्यान लगेगा, गुनाहों में कमी होगी। तो एक के बाद एक जो है वो एक सिलसिला बनता चला जाएगा और हमारे अंदर बेहतरी आती जाएगी। इमाम ने क्या फरमाया? तुम इल्म पढ़ते हो, सुनते हो, इसमें ख्याल करना चाहिए कि क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, इसके मुताबिक चलना चाहिए। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड इमाम से हियर, एंड देन फॉलो इट, इसके मुताबिक काम करना चाहिए, सिर्फ सुन के नहीं छोड़ देना है। जी नवीन साहिबा। When you read the books of knowledge and when you listen to its narration, you should think about what is being said in it. You must act according to that. The deeds of a good person must be virtuous and pure. There must not be any blemish. How bad does a person look like who does
who has a big head and small arms? And also, how bad does one look who has a big stomach and a slim body of short stature? This is an example. In the same way, one's bad actions too reflect badly on oneself. A mu'min must be aware of all matters. The lamp of Allah's nur is in you. It's okay. Thank you. तो इमाम यहाँ फरमाते हैं नेक आदमी के काम नेक और पाक होने चाहिए. If we call ourselves मोमिन, we have to behave like a मोमिन. सीधी सीधी बात है. If we are righteous, if we are मोमिन, we have to behave like one. तो हमें पता कैसे चलेगा भाई? हमें कौन आईना दिखाएगा? सोसाइटी में जो है कोई किसी को बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो अच्छी आदत नहीं है. पोलाइट बिहेवियर अच्छा बिहेवियर नहीं है कि कोई आपकी खामी आपको बताए. तो हमें कौन बताएगा कि हाउ वी आर बिहेविंग? इल्म ही बता सकता है. इल्म से ही हमें गाइडेंस मिल सकती है कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. इमाम फरमाते हैं कि नेक आदमी के अंदर कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए. कोई भी ऐब, यानी कि कितनी पाकीज़गी चाहिए, कोई ऐब, कोई कमी नहीं होनी चाहिए. दैट इज लिटरली इमाम हमें जो है एक मंजिल, एक डेस्टिनेशन दे रहे हैं कि रीच देयर, कि कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए. फिर इमाम दुनिया की मिसाल देते हैं कि किसी का शख्स का सर बड़ा हो, हाथ छोटे हो तो कितना बुरा लगता है. पेट बड़ा हो लेकिन बदन पतला हो तो कितना बुरा लगता है. यहाँ पे जो इमाम फरमा रहे हैं कि किसी का फिजिकल दिखना बुरा हो तो कितना अनकंफर्टेबल और कितना एम्बेरसमेंट होता है. तो अमाल की क्या हालत है? क्योंकि हमारे सोच में जब हम गुनाह करते हैं किसी को नजर नहीं आते हैं. दिल के अंदर हम किसी के लिए बुग़्ज़ रखें, गिबत करें, हसद करें किसी के लिए, ये तमाम बातें अगर हमारे अंदर हैं, हमारी हैबिट्स में हैं, लोगों को तो नजर नहीं आती है. तो इसलिए इमाम ने दुनिया की मिसाल दी कि दुनिया में अगर हमारे हाल अच्छे ना हो तो लोग क्या कहेंगे. नॉर्मली लोगों के अंदर क्या होता है? फियर ऑफ पीपल. व्हाट वुड पीपल से, राइट? खौफ बेजा, जिसकी टर्म जो है वो है खौफ बेजा, कि दुनिया से डरना कि दुनिया क्या कहेगी. इल्म की क्लासेस में कैसे बैठें, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी. आज किसी पार्टीज में नहीं जाना है क्योंकि इल्म को ज्यादा अहमियत देनी है, पार्टीज कम करनी है या नहीं जाना है, तो लोग क्या कहेंगे. ये तमाम बातें जो हैं हमें नजर आती हैं, दुनिया की आंखों में नजर आती है कि दुनिया हमें पसंद नहीं करती है. तो हमें कितना बुरा लगता है कि भाई नो, वी वांट पीपल टू लाइक अस. ये जो है मोमिन की निशानी नहीं है. ये जो है वो खौफ बेजा है. एक मोमिन का रास्ता, एक मोमिन के आमाल, एक मोमिन की चाहना इमाम की तरफ होनी चाहिए. लोग क्या कहेंगे? लोग तो किसको छोड़ते हैं? लोग तो हमेशा बुराई कहते हैं. तो अगर हम मोमिन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझना कि खौफ बेजा से अपने आप को आज़ाद करना है. खौफ बेजा क्या है? What would people say? Fear of people. किसका खौफ रखना चाहिए? किसका फियर दिल में होना चाहिए? खुदा का खौफ. मैं मेरे मौला से दूर ना हो जाऊं, मेरे मौला के दीदार से दूर ना हो जाऊं, वो खौफ रखना चाहिए. और उस खौफ के मारे काम करने चाहिए कि मेरा मौला, मेरा आका मुझसे नाराज ना हो जाए. क्योंकि अगर मौला हमसे नाराज हो गया तो हमारी आकबत का क्या होगा? उसको राजी करना है. तो इमाम ने दुनिया की मिसाल दी है कि फिजिकली अगर हमारे अंदर कोई ऐब हो या हमारे कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, हमें फौरन से पता चलता है और हमें फौरन ये खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे. एक हकीकी लोगों से नहीं डरता है. एक हकीकी इमाम के दीदार से दूर होने से डरता है. तो यहाँ पे जो मिसाल है, एक मिसाल है. इसका जो मग्ज़ है, इसका जो हासिल है वो ये है कि हमें अपने दिलों के अंदर खौफ खुदा को रखना चाहिए, आखिरत पे यकीन करना चाहिए. ये डराने के लिए नहीं है, ये डराने के लिए नहीं, एक हमें हिम्मत दिलाने के लिए कि मौला ही वो रहमान, वो दोस्त, वो हमारा माशूक जो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा. आखिरत में भी वो हमारा हाथ पकड़ के रखेगा, कभी भी हमसे
वो जुदा नहीं होगा। जिस दुनिया की हम अहमियत करते हैं, जिस दुनिया को हम अपने सर पे बिठाते हैं, जिस दुनिया की पसंदीदगी के लिए हम डरते हैं और ऐसे काम करते हैं कि दुनिया हमसे राजी हो, वो तो हमारे साथ आने वाली नहीं है। तो why do we worry about the worldly people or worldly comments? It does not matter. तो इमाम का ये मिसाल देना ये इसलिए है कि हम इस बात को समझें कि दुनिया के अंदर खौफ बेजा में मोमिन नहीं रहता है। मोमिन जो है वो मक्स के पीछे जाता है, हकीकत को फॉलो करता है और खुदा से डरता है। इमाम फरमाते हैं ये एक मिसाल है, इस तरह बद आमाल हो तो वो भी खराब लगते हैं। चूंकि अगर कोई मोमिन इल्म में नहीं है, जमाती भाई या बहन है, और वो जमात खाने तो आते हैं लेकिन इल्म की जब समझ नहीं होती तो वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया को खुश करने के लिए लगे हुए होते हैं। उससे नतीजा क्या होता है कि अमाल खराब हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिश है कि हमारे आसपास लोगों को खुश करें, वो हमें पसंद करें। मोमिनों को दुनिया पसंद नहीं करती है, मोमिनों को मोमिन ही की सोहबत में रहना पड़ता है, क्योंकि मोमिन ही मोमिन को समझ सकता है कि उसकी चाहना क्या है। लाइक माइंडेड पीपल के साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो ही जान सकते हैं कि हमारी ख्वाहिश, हमारी चाहत क्या है। दुनियादार को तो मोमिन कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मोमिन को तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि खौफ बेजा और खौफ खुदा को हम अपने दिल के अंदर रखें। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी एक्शन हम करते हैं, क्या हम वो एक्शन दुनिया की खुशी के लिए कर रहे हैं कि अपने इमाम को राजी करने के लिए कर रहे हैं? ये सोच समझ के करना चाहिए। अगर कोई जमात खाने जॉब के बाद आता है, कोई लेबर है और जमात खाने में आता है और वो पीछे बैठ के, दूर बैठ के, कपड़े जैसे भी हैं वो दुआ पढ़ लेता है और फिर निकल जाता है, वो ज्यादा बेहतर है बजाय उसके कि ये कहे अरे लोग क्या कहेंगे। एक मिसाल है जो हम कल की क्लास में बात कर रहे थे, उससे जहन में आई कि एक मिसाल है कि कितनी अजीब बात है कि हम दुनिया की पसंदीदगी को दिमाग में रखें कि फियर ऑफ पीपल, खौफ बेजा, और दुनिया को खुश करने के लिए हम अपने इमाम को, अपने मजहब को पीछे करें। तो ये सिर्फ नादानी की और गुमराही की बातें हैं। इमाम के लिए जो मैटर करता है वो हमारा दिल है। हम कितने इश्क और मोहब्बत से इमाम के फरामीन को मानते हैं, इमाम के फरामीन पर अमल करते हैं। जहां अमल में कमी है वहां पे मोमिन के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इस बात को दोबारा दोहराएं जब इमाम फरमाते हैं कि खुदा कोई मदारी नहीं है कि तुमको रस्सी डाल के खींचेगा। खुदा मदारी नहीं है। मदारी मतलब कि लिटरली कि अगर हम, कोई जादूगर नहीं है कि वो पकड़ के हमें निकाल देगा, कुएं में गिर रहे हैं तो रस्सी देके हमें निकाल लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक हम अपनी मदद आप नहीं करेंगे, जो हुक्म है खुदा का, जो हुक्म है हमारे इमाम का, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक इमाम की रहमत हम पर आ नहीं सकती है। इमाम की दुआशिश तो हम है, इमाम दुआ तो करते हैं, लेकिन उस दुआ का फायदा हमें पहुंचे उसके लिए हमें अपने आप को अमल में लाना होगा। आपको मालूम है ना कि जब भी हमें एक कॉन्सेप्ट है कि टू एक्टिवेट, राइट, कि किसी चीज को एक्टिवेट करते हैं तब उसका जो है वो फायदा समझ में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब जिक्र करते हैं तो हर जिक्र के ऊपर एक उसका फरिश्ता है, एक असाइन एंजल है। जब तक हम उस जिक्र को उस क्वांटिटी में, अबंडेंस में जब तक हम नहीं करते हैं, उस फरिश्ते को हम एक्टिवेट नहीं करते हैं, यानी कि वो फरिश्ता हमारा मददगार, कॉन्स्टेंटली हमारा मददगार बन जाए। जिक्र करने में ये फायदा है कि जिक्र के अंदर, हर जिक्र के अंदर एक ऐसा फरिश्ता है जो अगर हम उसको अपने लिए जिंदा कर लें तो वो फरिश्ता हमारा मददगार बन जाता है। जिस तरह हमारे पास दो फरिश्ते हैं जो हिसाब लिख रहे हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं। अब हमें फरिश्तों की फौज चाहिए हमारे लिए कि वो हमारी मदद करें, तो हमें ऐसे जिक्र के जरिए उन फरिश्तों को अपने साथ जिंदा करना होगा। तो जब हम इन फरिश्तों को जिंदा यानी कि एक्टिवेट कर लेते हैं,
तभी वो फरिश्ते हमारी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से जब इमाम की दुआशिश हमें आती है हम पर, अगर हमारे दिल पत्थर की तरह है, इल्म की कमी है, समझ नहीं है, तो वो दुआ असर नहीं करती है। जिससे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि जब हमारे फरामीन हम करते हैं, जिनके दिल नरम है वहां पे अच्छे अच्छे फल और फूल पैदा होंगे। इमाम ने मिसाल दी कि इमाम के फरमान जो है ऐसे दिलों पर असर करेंगे जो दिल नरम है, यानी कि अमल में है, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके दिलों में हम तब्दीली देखेंगे। तो मकसद क्या है यहाँ पे बात करने का, कि जब तक हमारे अंदर अमल नहीं है, हमारे ईमान में तरक्की नहीं है, ईमान में इजाफा नहीं है। ईमान में इजाफा कहाँ से आता है? इल्म से आता है, क्योंकि इल्म से यकीन बढ़ता है और यकीन ही ईमान है। तो इल्म, अमल, ये तमाम चीजें जो है वो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। जब ईमान मजबूत होता है तो खौफ बेजा खत्म होता है, खौफ खुदा जो है वो इश्क में बदल जाता है। फिर हम इमाम का नाम, इमाम की याद किसी खौफ से, डर से नहीं, इमाम की मोहब्बत में करते हैं। और हर मोमिन की यही ख्वाहिश है कि वो इमाम का सच्चा और पक्का आशिक बने। यहीं पे जो है वो तमाम बातें खत्म हो जाती हैं। इमाम की आशिकी चाहिए, इमाम की मोहब्बत चाहिए, और ये दुआ है कि मौला तू तेरा इश्क हमारे दिलों पर मुसल्लत कर दे। आमीन इलाही आमीन। यहाँ पर रोकते हैं इंशाअल्लाह, इसके बाद हम आगे फरमान पे बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, यू कैन कम फॉरवर्ड प्लीज। जाली मदद बराए मदद। मुझे पूछना था, आपने कहा ना हर जिक्र का फरिश्ता होता है, तो जिक्र यानी कि सिर्फ अल्लाह के 99 नेम्स है, या जो भी कुरानी जो आयतें हैं आप पढ़ते हैं, लाइक अलवाहिदुल कहार या अली अलम और मुजाहिद, कोई भी जिक्र वो जिक्र है? हम कुछ भी ला तकनतु मिन रहमतिल्लाहि, जो हम वो पिक कर सकते हैं, कोई भी जिक्र? तो जिक्र के माना क्या है फरजाना? जिक्र के माना है यादगिरी, राइट? राइट। तो यादगिरी हम किसी भी तरह से करें। आपको पता है इल्म का भी एक फरिश्ता है, इल्म का भी एक फरिश्ता है। तो जिस तरीके से हम इमाम की यादगिरी में रहते हैं किसी भी नाम को, तो आप क्या कह रहे हैं कि जिक्र का मतलब क्या तस्बीह है? तो हमने कल ही बात की थी कि तस्बीह का जो माना है वो है तारीफ, इमाम की तारीफ करना। जिक्र जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। जिक्र का मतलब है यादगिरी, और इमाम ने हमेशा फरमाया फरमान में कि तुम यादगिरी अपने दिल में रखो, क्योंकि यादगिरी का काम बहुत कठिन मुश्किल है, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जिक्र करें, जैसे आपने मिसाल दी खुद ही कुरान की, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, या अल वाहिदुल कहार जो एक नाम है 99 नाम में से, जो भी आप करें, मकसद ये है कि आप यादगिरी में रहें, जो आपके दिल को छूता है, जिसकी आपको चाहत है। अगर आप मुश्किल में हैं और आपको ऐसा लगता है कि नाउमीदी छाई हुई है और इमाम की रहमत नजर नहीं आती है, तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह बहुत ही पावरफुल जिक्र होगा, कि हम कह रहे हैं कि या मौला तेरी रहमत में कोई कमी नहीं है, तेरी रहमत हमसे दूर नहीं है। तो अगर इस जिक्र को हम क्वांटिटी में करते हैं तो इस जिक्र को हम पूरा कर लेते हैं, तो उसका फरिश्ता हमारे अंदर उम्मीद, यकीन और इश्क बन के बैठ जाएगा। फिर हमें कभी नाउम्मीदी का जो है वो एहसास, वो ख्याल नहीं आएगा। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है फरजाना वो बिल्कुल दुरुस्त है। ओके, थैंक यू। तो मतलब हम आपने बोला एक दफा आपसे पूछा था आपने 40,000 50,000 कितने तक पढ़ सकते हैं? अगर इतना टाइम नहीं हो तो कुछ भी पढ़ सकते हैं? तो मोमिन की ख्वाहिश क्या होती है? मोमिन की ख्वाहिश होती है कि जितना ज्यादा करे अच्छा है। तो शुरू में कमजोरी होती है, राइट? मैं जैसे बहुत कमजोर हूँ, तो मैं जैसे सोचती हूँ कि जैसे अलही जो है वो बहुत छोटा सा जिक्र है, राइट? अलही बहुत छोटा सा जिक्र है, तो क्या क्या ख्याल है, कोशिश करें 1000 दफा करने की, शायद मुश्किल से 1 घंटा भी ना लगे, 1000 दफा हो जाए। फिर एक दफा जब आदत हो गई, लेट्स से कि 40 दिन तक अलही किया हमने, एक घंटे तक, राइट? और एक आदत हो गई 40 दिन के बाद, तो शायद फिर हम 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं। तो नंबर तो नहीं मालूम है मुझे कि कितना नंबर होता है। नंबर भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, कि हमारी रूह की क्या हालत है। एक बात, हम कितनी गिरिया औजारी के साथ जिक्र करते हैं।
کیونکہ گریہ وزاری کے ساتھ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے نا اس شبد کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو ذکر تو طوطے کی طرح بھی کیا جا سکتا ہے نا, اور ذکر جو ہے وہ دل سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو جب ہم دل سے ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے, بہت اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے بڑھنے کی وہ بہت تیز ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے فرزانہ آپ تو اتنے اچھے ہیں, آپ اتنے علم گران میں آگے ہیں, شاید آپ 1000 دفعہ 40 دن کریں تو آپ کہاں پہنچ جائیں, ناچیز کو شاید بہت دیر لگے. تو پرسن میں بھی جو ہے انڈیویجولی فرق ہوتا ہے کہ وہ کیسے ذکر کر رہا ہے. نمبر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. تھینک یو. شکر مولا. Niyamat, I had a question for you. جی How are you first? شکر مولا. Alhamdulillah. Can a mu'min be doing seva in other realms other than earth? That's one question. The other one is, when we're saying salawat for the souls that have been departed, when we're doing that salawat, is that considered as seva? So I don't know about other realms. Simple as that, right? We as مومنین ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دوسری دنیا میں جب ہم یہاں خدمت کر رہے ہیں, کیا دوسری دنیا میں بھی اس کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو میں کہوں گی لیٹس کیپ لائف ایزی اینڈ سمپل. یہاں کی بات کریں کیونکہ ہمیں یہاں کا حساب کتاب کرنا ہے, یہاں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. تو یہاں اگر ہم خدمت کر رہے ہیں بالکل اس کا ثواب ملے گا, رائٹ؟ سو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جب ہم سلوات پڑھتے ہیں, روحانی جب چلی جاتی ہے, روحانی کے پیچھے جب ہم سلوات پڑھتے ہیں تو کیا یہ خدمت ہے؟ تو یہ دعا ہے, خدمت نہیں ہے. خدمت جو ہے وہ خدمت کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم روحانی کے لیے دعا کر رہے ہیں ایک خدمت کے سینس میں, ہمارا انٹینشن اگر یہ ہے تو ہو سکتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے سلوات کے جو ڈیپ میننگ ہے اس کو سمجھا ہے؟ کیونکہ سلوات کے اندر بھی جو معنی ہے وہ ایکچولی ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں. ڈو وی نو دیٹ؟ سلوات کے بھی جو معنی اگر ہم ڈیپ جائیں تعویلی میننگ کے اندر تو وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. لٹرلی ویری سمپلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ٹرولی اٹ از ٹو سیک نالج. تو سلوات جب پڑھتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ روحانی کو فائدہ پہنچے تو فائدہ پہنچتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن سلوات پڑھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں, اور جب اس خواہش پہ ہم عمل کرتے ہیں, حقیقی علم کو حاصل کرتے ہیں, تو ہماری زندگی کے اندر ہماری بہت زیادہ ترقی ہونے لگتی ہے, اور ہم پہ پھر جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں, ہم اس بات سے آزاد ہو جاتے ہیں, اس فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے جب ہم چلے جائیں. ہم اتنی محنت کریں, اتنی گریہ وزاری کریں, اتنا ذکر کریں, امام سے اتنی قربت حاصل کریں زندگی کے اندر ہی کہ اپنا کام خود ہی کر کے جائیں, ہاتھ ہی ساتھ ہے, رائٹ؟ تھینک یو جیسمین فار asking these questions. Any other question? Now, Sahaba, if you can repeat the zikr question, the quantity one, if in English, one of the friend is requesting if you can repeat a little bit about it in English. Okay. So Farzana was asking that when I said that every zikr has an assigned angel. So why do we do zikr? Why do we stay in remembrance? The reason we stay in remembrance, so we can activate angels for ourselves. Now, if I were to go a little bit deeper, the way we do know that there is army of shaitan. Shaitan is not alone. There's an army of shaitan, right? Ins or jinn. We do hear it from Quran that we pray for protection from shaitan who are insi and jinni, like human shaitan and invisible jinni shaitan. So interestingly, we have identified more than one type of shaitan who is around us, and there is army. Now, is Allah not merciful that there would be an army of shaitan but not army of an angels? Army of angels? Would he not give that to us? So
in that context, I was saying that when we stay in remembrance, everything we do, like we do zikr, we do tasbih, we study ilm, everything has its own assigned angel. And then, because she was talking about zikr, tasbih, I gave example of a small zikr like Al-Hayy. Al-Hayy is one of the 99 names of Allah in Quran, which means the one who is alive and who can bring us to life. So if we are not living, meaning that every particle of our being is not alive, the way P said, Rome, Rome, Maro Shahaba say, if our every particle is not doing zikr automatically, meaning that we are still not alive. And that is why this zikr, zikr of Al-Hayy, becomes very related and important to us. So if we were to, let's say, make an intention that we will do zikr of Al-Hayy 1,000 times. During the daytime, we will do zikr of Al-Hayy 1,000 times. So she was asking, how much quantity do we need to do? 10,000, 100,000? And the answer is, I don't know, because the quantity actually differs from individual to individual. How? What does that mean? It means that the one who is doing the zikr, how are they doing it? If the zikr is done with complete concentration and with Giriya Ozari, that zikr flies very fast. And that moment can activate the angel of that zikr very fast. Versus someone who is very slow, who is doing this counting just because there's an intention as a parrot to finish the counting quantity, it will take time. So in somewhere I had read that, for example, one of the zikr, a quantity could be 124,000 times, 124,000 times. So this is just an example. So for every individual who does the zikr with true concentration, complete concentration, with Giriya Ozari, with complete understanding of the meaning, they are able to activate the angel of that zikr very fast. And alhamdulillah, we have treasure of zikr because we always want to stay in remembrance. So the more zikr we do with complete focus, with Giriya Ozari and in abundance, that many angels now we have activated, meaning that someone would be walking around with the army of angels. Shaitan cannot come close to that person. Shaitan cannot deceive because we don't need to even worry. These angels are fighting for us. So when we hear this term, right, Ajampiya Jam, what does that mean? The way we were discussing yesterday, that what do I do if I'm working and I'm not able to do zikr because we have not activated those angels who would do the zikr for us. If we stay in remembrance, if we do zikr in quantity, those angels will be doing the zikr and will be listening to it. But our mind and we are working, whatever we need to do, physical work. But we can listen, there is an inner being, we can listen to this zikr and realize, oh, this zikr is being done automatically. That is the indication that you've been doing zikr properly, the way it is supposed to be, and in quantity, and you are now, without doing zikr, you are listening to zikr. It is your zikr. This angel who is doing the zikr, it is on your behalf. It is written in our book of deeds. I hope this helps. So I see a question here, Naveen Sahaba. Will we be able to see angels or hear angels? Everything is possible in paradise. So seeing and listening is through senses. If we are able to open up our Batni senses, sure, we can listen, we can talk, we can see, we can hear. Definitely. Yali Madad, friends, Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, friends, Yali Madad. Yes. Good night. Good night. Yali Madad. Yali Madad, Munira, Yali Madad. Thank you. Shukran Mola, Shukran Mola. Yali Madad. Yali Guys, Madad. everyone.